I'm for Dinesh bhai. Let's start with the prayer. Go ahead. ओम सदगुरु कबीर साहेब की जय। घूंघट का पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, धन जौबन का गर्वन कीजे, धन जौबन का गर्वन कीजे। झूठा पचरंग चोर, सुन महल में दीना भरीले, सुन महल में दीना भरीले। आसन से मत डोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, जाग जुगत में रंग महल में, जाग जुगत से रंग महल में। पिया पायो अनमोल, कहता कबीरा नंद भयो है, कहता कबीरा नंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घट घट में वो साई रमता, घट घट में वो साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, मर मर जात शरीर। आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। ओ जीरे भाई कह गए दास कबीर। कबीर कहे कमाल को दो बाता सीख ले, दो बाता सीख ले। कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। ओ जीरे भाई भूखे को कुछ दे। आए सो जाएगा राजा रंक फकीर, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। ओ जीरे भाई एक बंदे जंजीर। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम
जय जय राम। ओम सदगुरु कबीर साहेब की जय। सौने राम कबीर। રામ કબીર. રામ કબીર દિનેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણા ભક્ત સમાજ તરફથી તમે આજે જે સમય આપીને એક આધ્યાત્મિક વાતાવરણ ઊભું કર્યું એ બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ ભક્તજનોને રવિવાર એટલે ભક્તોને મળવાનો અને ભક્તો સાથે એકબીજા સાથે સત્સંગ કરવાનો સમય, એને આપણે કબીર વિઝડમ કહીએ છીએ. અને કબીર વિઝડમના આ પ્લેટફોર્મ પર આપણે બધા જ્યારે ભેગા થઈને આપણે એકબીજા સાથે જે આપણા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એવા એક સુંદર સત્સંગમાં આપણાને કાયમ આનંદ રહે, કાયમ આપણી પ્રગતિ, આપણા નોલેજ વધતું રહે અને આપણું નોલેજ થકી આપણું વર્તનમાં પણ સુધારો આવે, એવી બધાને પ્રાર્થના, અપેક્ષા સહ આજનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરીએ છીએ. સો આપણાને બધાને ખબર છે તે પ્રમાણે આજથી નવરાત્રી, જે માતા શક્તિ, આપણામાં જે શક્તિ માતાના આશીર્વાદ છે અને એ દ્વારા જે આપણામાં શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણે શક્તિ દ્વારા જે બધા કર્મો ડે ટુ ડે કરીએ છીએ, એ બધી જ શક્તિને રિપ્રેઝન્ટ કરતું આપણું આજનું પર્વ અને જે નવરાત્રીને આપણે કહીએ છીએ, નવરાત્રીનો પ્રસંગ કે જેના થકી આપણા બધાને એક સરસ મજાનો ઉલ્લાસ ભરી રહી છે આપણામાં, એવા ઉલ્લાસ ભર્યા વાતાવરણની અંદર આજે આપણે આપણી સાથે કાયમ જોડાતા અને આપણને બહુ સુંદર રીતે માર્ગદર્શન આપતા એવા સંત આપણી સાથે લાસ્ટ ટાઈમ પણ જોડાયા હતા અને અત્યારે પણ આપણી સાથે ભારતથી જોડાય છે. અને સવિશેષ કે ભારતમાં એમની અત્યારે કથા ચાલે છે અને એ કથા શક્તિ માતા શક્તિપીઠ પર કે જે આપણામાં શક્તિ રહેલી છે એના વિશેની સુંદર કથા ગુરુજી દ્વારા કરવામાં આવે છે. એ ગુરુજી આખો દિવસ વ્યસ્ત હોવા છતાં અત્યારે રાત્રે 11 વાગ્યા છે ઇન્ડિયામાં, છતાં પણ આપણી સાથે એવો સવારના 7 વાગે જોડાતા હોય એટલા જ સ્ફૂર્તિમય, એટલા જ આનંદથી જોડાય છે. તો એમને હું વેલકમ કરું છું. તો રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. હા સાહેબ બંદગી. અને તમારો ઘણો ઘણો સ્વાગત છે. આમ તો મારાથી સ્વાગત નહીં કહેવાય, કારણ કે અમે બધા હવે તમારા ડીલમાં રહેતા એવું લાગે છે થોડું, એટલે અમારથી સ્વાગત થોડો શબ્દ. પરંતુ બધા ભક્તોને રામ કબીર મારા તરફથી. અને આજે તો આપણે તમારી પાસેથી પ્રથમ તો હું આજનું લિસ્ટ, આજનું જે પ્રમાણે આપણે આપણી જે ચલાવવાના છે સત્સંગ, એના વિશેની થોડી વાતો કરી જાઉં. તો કે પહેલા તો તમારે અમને જે અત્યારે નવરાત્રી ચાલે છે એના વિશે અને તમારી કથા જે ચાલે છે એના વિશે તમારે અમને 15 થી 20 મિનિટ તમે જરા અમને બ્રીફમાં કહી જાઓ. આઈનો થોડું તમારા માટે થોડું બ્રીફ રહેશે વધારે, પરંતુ અમે સાંભળવાની ઇંતજારી છે. અને ત્યારબાદ લાસ્ટ સેશનની અંદર જ્યારે તમે અમેરિકામાં હતા ત્યારે આપણે જે અહીં બધા યંગ જે જનરેશન ખરું, જે સેકન્ડ કે થર્ડ જનરેશન, એ લોકો તમને પ્રશ્ન પૂછતા હતા અને એ પ્રશ્ન આપણી પાસે લખેલા હતા, બધાએ અમને મોકલેલા હતા. એના ઘણા પ્રશ્નો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી. થોડા પ્રશ્નો આપણે બાકી રહી ગયા હતા અને એ પ્રશ્નો આજે હું તમને પૂછીશ. પછી કોઈ પણ જે આપણી જોડે ઝૂમ મીટિંગમાં જે જોડાયા છે એને પણ કોઈકને પણ કંઈક ક્વેશ્ચન હોય અને યુથ પૂછતા હોય એ પ્રમાણે, એટલે કે આપણા ઘણાના ક્વેશ્ચન કદાચ કોઈ જુદા સબ્જેક્ટ પર હોય તો મહેરબાની કરીને એવો સબ્જેક્ટ તમે સિલેક્ટ કરજો કે જે ચાલી રહ્યો છે અને એ સબ્જેક્ટ પર તમે પૂછશો તો આપણને ગુરુજી, કારણ કે ગુરુજી કાયમ જ કહે છે કે વાર્તાલાપથી જે વિશેષ જ્ઞાન મળે છે એ જ્ઞાન નહીં મળી શકે બીજી રીતે. અને એકલા ભાષણ આપીને જ કરવું હોય તો એમને એ પસંદ નથી. એ કહે છે કે ઓલવેઝ વાર્તાલાપ, કન્વર્સેશન એકબીજા સાથે કરીએ તો વધારે સારી રીતે સમજી શકાય કોઈ પણ હાર્ડ સબ્જેક્ટને. તો હવે હું તમને ફરી પાછું વેલકમ, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ. અને તમે શક્તિ જે નવરાત્રીનો પ્રસંગ છે એના વિશે થોડી વાત કરો પહેલા. बहुत ही शुभ और अद्भुत समय अभी चल रहा है
हम ये भी कह सकते हैं कि ये समय न सिर्फ 9 रात्रि स्पेसिफिकली जिसे हम कहते हैं 9 नाइट्स, ये सिर्फ 9 रातें नहीं है। ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन शक्ति की उपासना के दिन है। और इन्हीं 9 दिनों में क्यों, ये अद्भुत समय होता है कि जब चैत्र के शुरुआत में 9 दिन को नवरात्रि के रूप में माना जाता है, और शारदीय नवरात्र एक ऐसा उत्सव जिसमें हम शक्ति का संचय करें और प्रकृति जो नया रूप लेने जा रही है, एक सुनहरे रूप में ढलने वाली है प्रकृति। उससे पहले का जो समय होता है, कालखंड होता है, वो शीतकालीन होता है। और शीतकालीन कालखंड से, ठंड से, कोल्ड वेदर से हम समर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उसके बीच में हम शक्ति की उपासना करके माँ प्रकृति से, मदर नेचर से हम प्रार्थना करते हैं कि न सिर्फ मंत्र चांटिंग करके मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहता हूँ, साथ ही साथ व्रत, नियम, यम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, इन सारे अष्टांग योग की इन विधाओं को प्राप्त करके मैं ईश्वर अब प्रकृति के बदलते स्वरूप के साथ भी तैयार हूं। तो सीधा सीधा सिंपल सा लॉजिक है कि ये 9 दिन चाहे चैत्र के हो चाहे शारदीय हो, शारदीय नवरात्रा मतलब फिर मैं शीतकालीन आने वाले समय को, मैं उससे पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी और अपनी शारीरिक ऊर्जा दोनों क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मैं नवरात्रि करता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि ये नवरात्रि का जो समय है, इस समय में व्यक्ति रोग ग्रसित भी बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इस समय में डिजीज आते हैं, सबसे ज्यादा इस टाइम में व्यक्ति बुखार होता है, कफ होता है, खांसी होती है, जुकाम होती है। ये तो चाहे आप अमेरिका में हो चाहे यहाँ हो, ये जो समय है ये सबसे ज्यादा हमारा जो स्किन का, हमारा जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, या आप ये कहें कि इम्यूनिटी पावर है, इन सब में अगर हम इन 9 दिनों में नवरात्रि में भूखा रहकर, व्रत रख के, फास्ट करके अगर हम अपने अंदर की मशीनरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो नवरात्रि से बेटर, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो 9 दिन है, हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी हम फास्टिंग करते हैं। जैसा एक दिन ऑनलाइन बच्चों के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था, जैसा अभी मैंने कहा कि संवाद, कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, उसी कॉन्वर्सेशन में एक बात आई थी कि वाई डू वी फास्ट, वाई वी डू फास्टिंग, ऐसा करके कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था। तो मैंने उस समय भी कहा था कि देयर आर 5 एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, दिस बॉडी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो ऑल 5 एलिमेंट्स क्या है? फायर, एयर और अर्थ, स्काई एंड वाटर। ये 5 जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स से ये बॉडी बनी है, ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि बनी है। सृष्टि को तो हम पॉज कैसे करें इसके बारे में भी हम विचार करेंगे, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस बॉडी का जो ये 5 एलिमेंट से बनी है, इस पूरे सिस्टम को अगर हमें ग्रीसिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, इसको इम्प्रूव करना है, इस मशीनरी को और ज्यादा मजबूत बनाना है, तो इसको भी हमें रेस्ट देना पड़ता है। अब आने वाले विंटर के लिए, आने वाले समय के लिए हम अपनी बॉडी को 9 डेज तक एक शॉर्ट लीव देके, चाहे 1 टाइम फूड स्किप करें, चाहे डिनर स्किप करें, चाहे लंच स्किप करें, एटलीस्ट एक मील तो हमें स्किप करना ही होगा। ठीक है, अगर ये करते हैं तब तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको कम से कम व्रत के दौरान उपयोग में ली जाने वाली वस्तु यानी अन्न का त्याग करो, और व्रत में जो चीजें खाने योग्य होती हैं, आलू खा सकते हैं आप, मूंगफली के दाने खा सकते हैं आप, सिंघाड़े का सीरा खा सकते हैं आप, सामे की खिचड़ी खा सकते हैं। अब गुजराती में इन शब्दों को क्या कहते हैं वो आप लोग फाइंड आउट करिएगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। अर्थात एटलीस्ट हम ये सारी चीजें खा के, अन्न का त्याग करके हमारी मशीनरी को थोड़ा आराम देंगे। आराम के साथ साथ हम भूखा रहते हैं, हमें ऐसा लगता है 1 या 2 दिन के हम वीक होते जा रहे हैं, जबकि ये हमारा ये जो डिजीज है ना, मेंटल डिजीज, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, अगर हम भूखे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसा कहीं मैंने नहीं पढ़ा आज तक कि भूखे रहने से आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है।
until unless कि आप किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, तो आप चिकित्सक की सलाह लेकर के चीजों को करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, अगर आप किसी प्रकार से बीमार नहीं हैं, तो एटलीस्ट आपको एक मील तो स्किप करना ही करना है, चाहे डिनर करें चाहे लंच करें। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा वाटर फास्टिंग हो जाए। इस नवरात्रि 9 दिन तक सिर्फ जल पे रहें, फ्रूट्स पे रहें, जूस पे रहें, नारियल पानी पे रहें। ऐसा कुछ संकल्प भी आप ले लें। ऐसे तो बहुत विरले ही लोग होते हैं, लेकिन ये जरूर करना है। ये मैंने आपको बताया प्राकृतिक फायदा, साइंटिफिक जो बात कहते हैं कि हम इस वजह से ये 2 नवरात्रि को महत्व देते हैं। एक होती है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि होती है आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए, वो पूरा पूरा आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही की जाती है। लेकिन इन 2 शारदीय और चैत्र नवरात्रि का तो सीधा सीधा संबंध है प्रकृति के साथ, इस बॉडी का एडजस्टिंग। और रोग मुक्त रहना है तो नवरात्रि की फास्टिंग करनी है। अब आते हैं नवरात्रि पर। क्या है ये नवरात्रि? ये नवरात्रि का क्यों है, 9 दिन क्यों नहीं कहा गया? वाई वी से 9 नाइट्स? 9 डेज भी तो हो सकता था। अर्थात दिन तो जगना ही जगना है, लेकिन इन 9 रात में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हमें अपने शरीर की ऊर्जाओं को व्यर्थ करके लाश की तरफ पड़े नहीं रहना है, जो आप हमेशा करते हो। आप सभी गृहस्थियों को मैं बता रहा हूं, और मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है वो आप सब अच्छे से समझते हैं। इन 9 रात्रि में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पहला मैं आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर ले जाने के लिए आपको कह रहा हूं। 9 रात्रि अर्थात नाइट्स में हमें शिथिल होकर के बिस्तर पे पड़े नहीं रहना है। इन 9 रात्रि में हमें जल्दी सोना है और बहुत जल्दी उठना है। कोशिश करें कि 2, ढाई, 3 बजे के आसपास उठ जाएं। रात के लेटर नाइट सोना नहीं है, अर्लियर नाइट सोना है, और अर्लियर मॉर्निंग उठना भी है। मतलब अराउंड 8-9 ओ क्लॉक इवनिंग या पीएम आपको सो जाना है, और अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM या 2:30 अराउंड 3 AM आपको उठ जाना है। उठ करके आपको साधना करनी है। अब साधना क्या करनी है, ये सबसे बड़ा सवाल। साधना करनी है मंत्र जाप। मंत्र जाप मैं दृढ़ विश्वास है। सबरी की 9 भक्ति में से, 9 भक्ति में से एक भक्ति ये भी है कि मंत्र जाप में आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं है दृढ़ विश्वास, तो आप ये समझ लीजिए कि ये बात सिर्फ नवरात्रि की नहीं है। ये दृढ़ विश्वास जो है ना हमारे अंदर है। अगर नहीं पैदा हुआ तो नवरात्रि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, किसी के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं रहेगी। तो विश्वास करना जरूरी है मंत्र जाप में। पहली बात, बिना सोचे समझे, बिना सवाल के एक बार विश्वास करना शुरू करो। ज्यादा सवाल करोगे ना तो कुतर्की हो जाओगे, लॉजिकल भी है ना, नेगेटिव लॉजिक्स की तरफ चले जाओगे। जो मैं हमेशा कहता हूँ, विश्वास करो एक बार मेरी बात का, बिना पूछे सवाल। इस बात के लिए तो विश्वास करो, बाकी 100 सवाल मुझसे पूछो, लेकिन एक मेरी सलाह मानो, मंत्र जाप प्रारंभ करो। क्या मंत्र जाप करना है ये दूसरा बात है। नवरात्रि है तो हम बहुत सारे मंत्र, आप YouTube पर सर्च करोगे तो अलग अलग देवी के अनुरूप, अलग अलग देवी की उपासना के अनुरूप कई प्रकार के मंत्र हैं। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया उसी मंत्र का जाप करो। आपके गुरु ने आपको मंत्र दीक्षा देते समय जो भी मंत्र दिया है, गुरु दीक्षा देते हुए आपको मंत्र दीक्षा देते समय जो भी मंत्र आपको दिया है उस मंत्र का जाप करो। उस मंत्र का जब आप जाप करोगे, कब करना है वो भी मैंने बता दिया। अर्लियर मॉर्निंग अराउंड 2:30 AM या 3 AM के आसपास स्टार्ट करना है, और मॉर्निंग टिल सूर्योदय, सन राइजिंग से पहले पहले तक ये 3-4 घंटे आपको इन 9 रात्रि में जगना है, सोना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और यहाँ पर आप इससे रिलेट करोगे कि हम फास्टिंग क्यों करते हैं, कि हम रात में जग पाए। अगर हम पेट भर करके सोएंगे तो रात को जग
नहीं पाएंगे। हमारी बॉडी जो है पूरी एनर्जी लगेगी उस खाने को पचाने में, पूरी एनर्जी लगेगी जो खाया है उसको पचाने में, पूरी मशीनरी काम करेगी कि आपने समोसा खाया है, ढोकला खाया है, थेपला खाया है, अरे बाप रे इतना सारा घी खाया है, इतना तेल खाया है, इतने सारे काजू पिस्ता बादाम खाए हैं, दुनिया भर का सामान खाया है। मशीन चिंता में आ जाएगी और वो उसको पचाने में लगेगी। वो आपको जगने नहीं देगी, वो कह देगी तू सो जा, तू सो जा, तू सोएगा तब मैं अपना काम करूंगा। मशीन कहेगी तू सोएगा तब मैं आपका भोजन पचा पाऊंगा। ऐसे में आपकी मशीन जो है रेस्ट भी नहीं कर पाएगी, ना आपको जगने के लिए तैयार कर पाएगी। अब बताओ, खाना खाने से ऊर्जा मिली या ऊर्जा आपको शिथिल कर गई? सीधी सी बात है, ओवर ईटिंग आपको शिथिल कर देती है। खाना नहीं खाते हो तो आपको नींद नहीं आती, अर्थात आपके अंदर ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में समाहित हुई है। सिंपल सा है, ये साधारण साइंस है, इसको ज्यादा डीपली समझने की कोशिश भी मत करिए, ऊपरा ऊपरी तौर पर समझिए। ज्यादा गहराई में उतरोगे तो भी समझ नहीं आनी, और ज्यादा मध्यस्थता में भी नहीं रहना है। ऊपरी तौर पर इस साइंस को, इस विज्ञान को समझिए। ज्यादा भोजन खाना नहीं है। नवरात्रि में भूखे रहने का कारण बॉडी भी कंट्रोल हो जाएगी और आप रात्रि में जगने के लिए तैयार हो जाओगे। रात्रि में जगोगे, ये गुजरात में एक परंपरा है। नवरात्रि आते ही सबको कल्चरल ड्रेस पहनना और हाथ में डंडिया लेकर के निकल जाना है। मैं इसका विरोध नहीं करता। कल्चरल कपड़े एक दिन नहीं, रोज पहनो, खूब कलरफुल कपड़े पहनो, कोई कमी नहीं है। पूरी जिंदगी को गरबा बना दो, खूब उत्सव करो, खूब आनंद करो। पर डांडिये का उपयोग 9 दिन खाली प्रेम बढ़ाने के लिए तो करते हो, लेकिन पूरे 365 दिन घर में जो डांडिया खेलते हो उसको थोड़ा कंट्रोल करना सीखो। वो डांडिया कंट्रोल नहीं होगा तो ये 9 दिन कितने ही लकड़ी से डंडिया खेल दो, वो डंडिया सक्सेसफुल नहीं होना है। तो डांडिया खेलने के पीछे या नाचने के पीछे रीजन इतना ही है कि जिंदगी की इस जंग को जीतना सीखो। बाहर ये डांडिया की जंग दिखाना बंद करो। खेलो, महारास करो, गरबा करो, नृत्य करो, मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन नवरात्रि जो है नाचने कूदने का त्योहार नहीं है। 9 रात्रि तक मंत्र का डंडिया हाथ में लेकर के जाप करते हुए परस्पर इस जाप को ऐसा टकराया जाए कि जो झंकृत नाद निकले वो नाद अनहद नाद का निकले, जो झंकृत आवाज निकले वो अनहद नाद की निकले। इसलिए हम साधु संतों गरबा 9 दिन खेलते ही नहीं, 365 दिन गरबा खेलते हैं और रात्रि में जगते हैं। रात्रि में जगते हैं, दिन में भी जगते हैं, रात्रि में भी जगते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा दिन में कथा चल रही है 4 घंटे की, मॉर्निंग में सवेरे सवेरे जल्दी उठना होता है। मैं नवरात्रि के दौरान 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता हूँ। आम दिनों में 4.5, 5, 5.5, 6 घंटे तक भी सोता हूँ, लेकिन नवरात्रि में मैं 2.5-3 घंटे से ज्यादा नहीं सोता। कारण, क्योंकि ये 9 रात्रि है और 9 रात्रि का जागरण है। 9 nights I will do mantra chanting always. That is my aim. बहुत बढ़िया, बहुत आपने वो नवरात्रि का पूरा माहौल सजा दिया हमारे लिए। तो बहुत अच्छा आपने बोला। तो अभी हम वो जो हमारा जिसका सेशन है आज इसके उस पे आते हैं। अभी तो हमने लास्ट टाइम में बात किया था कि व्हाट इज अ स्पिरिचुअल, व्हाट इज अ रिलीजियन, and about like youth are asking questions about the how to behave and what to learn about the spiritual. So to go brief again, आपको मैं बता दूं कि थोड़ा फिर से आप बता दीजिए आज की स्पिरिचुअल और रिलीजियन डेफिनेशन और इसमें डिफरेंस क्या है। It's my duty to remember always again and again because इंसान की जो मेमोरी है ना वो इतनी शॉर्ट है कि उसे सुबह क्या खाया वो शाम को याद नहीं रहता। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार इस बात को जब तक जीऊंगा, अंतिम सांस तक मैं इस बात को सुनाता रहूंगा कि स्पिरिचुअल क्या है, धर्म क्या है। पता नहीं कौन से दिन मेरी बात आप लोगों को स्थिर हो जाए और वो आपको समझ आ जाए। इसलिए मैं अपने प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता।
कई बार लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी, जब आपके सामने लोग आर्ग्यू करते हैं, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में मैं मौन हो जाता हूँ। और मौन इसलिए नहीं होता कि मुझे उसके साथ उलझना नहीं है, मौन इसलिए होता हूँ कि कुछ देर के लिए मैं प्रार्थना कर पाऊं कि ईश्वर अगली बार इससे भी बेहतर प्रयास करने के लिए मुझे तैयार करना। तो मैं कभी रुकने नहीं वाला, मैं कंटिन्यूअसली, मैं अपने पूरी ताकत के साथ आप लोगों के सामने तैयार हूं। अब रही बात अध्यात्म और धर्म के बीच के अर्थ को समझने की, तो व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन इज व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू। ये है रिलीजन। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। इफ यू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, देन यू आर रिलीजियस, and if you choose right way, then you are spiritual. सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। क्या गलत है, क्या सही है, इसकी पहचान जो जान जाए वो है धर्म, और जो जान जाए वो उस रास्ते पर निकल पड़े वो है आध्यात्म। अब रही बात स्पिरिचुअल को और ज्यादा डीपली समझने की और धर्म को और डीपली समझने की, तो धर्म का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूं। जो धारण करने योग्य वस्तु है वही धर्म है। लेकिन जो धारण करने योग्य चीजों को जान जाए कि इस दुनिया में क्या चीज है जो सही है, क्या चीज है जो प्रकृति के लिए सही है, क्या चीज है जो जीव मात्र के लिए सही है, क्या चीज है जो मनुष्य मात्र के लिए सही है, वो मैं करता रहूं। ये करता रहूंगा तो मैं धार्मिक हूं। और मैं करते करते जब स्वयं की पहचान करने के लिए निकल पड़ूंगा कि मैं कौन हूं, जब मैं जान जाऊंगा कि मैं धार्मिक तो हूं, मैं धर्म पर तो चल रहा हूं, लेकिन चलते चलते अब मुझे क्या करना है, जब मैं खुद से सवाल पूछूंगा कि मैं धर्म के रास्ते पे चल भी रहा हूं, लेकिन ऐसे चलते चलते तो मर जाऊंगा तो बाद की स्थिति क्या होगी, और इससे पहले मैं क्या था, और आज मैं ये सब करते करते क्यों, कौन सा लक्ष्य बना करके मैं ये धार्मिक बन के घूमूं। धार्मिक मैं बन गया, हेमंत भाई धार्मिक, राजू भाई धार्मिक बन गए, मैं स्वामी अभयदास धार्मिक बन गया, क्योंकि मुझे अब पता है कि गलत क्या है सही क्या है। अब मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सही करूंगा। अरे सही करते करते भी मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जब मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन हूं पहले, फिर मुझे क्या करना है वो है दूसरा। तो मैं कौन हूं जिस दिन मैं ढूंढना शुरू करूंगा, वह रास्ता कहलाता है आध्यात्म। और जब मैं ये करने के लिए करना शुरू कर दूंगा कि मैं आध्यात्म के प्रति अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना शुरू करूंगा, मैं कौन हूं इसको जानना शुरू करूंगा, उस दिन से मैं हो जाऊंगा आध्यात्मिक। सिंपल सी बात है, इसको मैंने क्लियरली समझा दिया। थैंक यू। राइट, नहीं बहुत अच्छा, आपने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छी तरह से समझाया था। और जैसे हम लोग तो संसारी है, थोड़ा 7 दिन की अगर कथा नहीं लगती तो हमें पता नहीं चलता कभी कभी। तो ये आपका वो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ। अभी जब भी वो रिलीजियन वर्ड आता है हमारे लिए और जो यूथ के लिए ना, तो यूथ ने वो पूछ रहे हैं कि भाई अगर रिलीजन आता है तो रिलीजन के साथ गॉड आते हैं, तो गॉड यानी कि भगवान, ये भगवान क्या चीज है? जैसे भगवान चीज है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ कृष्णाय की जगह कबीराय कर दो, रामाय कर दो, शिवाय कर दो, ब्रह्माय कर दो, जो करना है कर दो। मैंने तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। मैंने सहारा तो भागवत के प्रथम श्लोक से लिया, लेकिन मैं फिर और भी बहुत सारे सहारे लेने के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं। कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर। अगर कबीर को मानने वाले हैं तो सभी कबीर साहब के अर्थ को भी समझ जाए। कबीर नॉट जस्ट एन पर्टिकुलर पर्सनालिटी, that Kabir wants to say always. Kabir word is not related to any personality, not that person who lives around 125 years on this world. Kabir means that Brahma, कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर।
हेमंत भाई इज नॉट जस्ट अ हेमंत जो 55-50 साल के 45 साल के हैं। हेमंत जो है उसकी भी अपनी व्याख्या है कि कौन है हेमंत। वह आत्म स्वरूप जो 84 लाख योनियां भोग करके जन्मा और जन्मने के बाद अब कंप्यूटर के सामने बैठकर वीडियो कॉल के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू यह जानने की चेष्टा कर रहा है कि मैं कौन हूं। तो सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। आप सब दुनिया को लगता है कि हेमंत भाई है, पर मेरे को तो लगता है ये 84 लाख योनियां भोग करके आया हुआ एक जीव है जो ये जानना चाह रहा है कि मेरा कल्याण कब होगा और मैं मुक्त कैसे होऊंगा। कबीर ने तो पहले ही ये बात आज से 600 साल पहले कह दी। और कबीर ने कब कही? जब उससे हजारों साल पहले वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का पहला श्लोक लिख दिया था, जिसमें कह दिया कि ब्रह्म कौन, ईश्वर कौन, भगवान कौन, कि सत्य चित्त आनंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए, जो विश्व की उत्पत्ति और विनाश दोनों का कारण। उन्हें पता है कि सृष्टि को कब पल्लवित करना है और कब सृष्टि का विनाश है। तापत्रय विनाशाय, जो देहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाला सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप वो ईश्वर है। अब इसमें थोड़ा और गंभीरता से अंदर उतरेंगे ना, तो सत्य चित्त और आनंद भी तो हमारे अंदर ही है। हम सत्य को प्राप्त कर ले, हम सत्य के करीब चले जाएंगे। हम सत्य को प्राप्त करते 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 सत्यमय हो जाएंगे। चित्त, चित्त की अनुभूति, चित्त की स्थिति, चित्त की अवस्थिति, इसको जानते जानते हम चित्तमय हो जाएंगे। आनंद 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 कहते कहते आनंदमय हो जाएंगे। जब आनंद के स्वरूप को जान जाएंगे, आनंद होता क्या है, इन तीनों की स्थिति को जानना ही तो ईश्वर को जानना है। ईश्वर को जानना मतलब ईश्वर में विलीन होना जैसा ही तो है। और ईश्वर में विलीन होने के लिए शरीर का त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं, ये भी आज सुन लो। ईश्वर में विलीन होने का अर्थात है ईश्वरमय हो जाना, कोई फर्क न रह जाना। ये जो गुण और ये जो स्वरूप मैंने बताए, सत्य चित और आनंद, इस जैसा हो जाना, इसको प्राप्त कर लेना और इससे बिल्कुल अलग ना होना, यह ईश्वर होना ही तो है। ईश्वर को प्राप्त करना ही तो ईश्वर होना है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आग में वस्तु डाल दी जाए तो फिर वो वस्तु वस्तु रह जाएगी, फिर वो भी आग है। जलती हुई आग में अगर आप सोना फेंक दोगे ना, तो वो सोना फिर आग होगा, सोना नहीं रहेगा। कुछ भी उसमें मिला दो फिर वो आग बन जाएगा। तो ये जो ईश्वरीय तत्व है ना, ये वैसा ही है। आप जब इसमें इसके करीब जाओगे ना, तो इसके जैसे हो जाओगे। फिर आप वो नहीं रहोगे जो थे, आप वैसे हो जाओगे जो आप होना चाहते थे। इसलिए ईश्वर क्या है? ईश्वर तो सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप है, जन्म मरण से परे है। और कक्का केवल ब्रह्म है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब में रम रहा। वही सत्य चित्त और आनंद सभी घट में मुझे तो नजर आ रहा है। आप ना जानो वो मेरी गलती नहीं है, पर मुझे तो सब में नजर आ रहा है। तो मैं ईश्वर को पहचान पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से जान पा रहा हूँ, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई प्रकार की गुत्थी नहीं, कोई प्रकार के दिक्कत नहीं, कोई प्रकार का मुझे तो कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा। मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो मैं समझ पा रहा हूँ मेरे ईश्वर को, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत है, बहुत आपने अच्छी तरह से समझा दिया। मगर ये जो भगवान का आपने कॉन्सेप्ट बताया कि ये है भगवान और हमारे अंदर भी है भगवान, हम भी सच्चिदानंद हो सकते हैं, तो फिर यहाँ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका से लोग इंडिया क्यों जा रहे हैं? जैसे बोलते हैं ना कि भाई सभी भगवान इंडिया में ही है, और ये डिफरेंट डिफरेंट भगवान, न थाउजेंड्स ऑफ भगवान है। तो सभी जो जो लोग हैं वो यहाँ से भगवान का दर्शन करने के लिए इंडिया आते हैं। अभी हम भी देखते हैं तो सभी भगवान का जन्म भी इंडिया में ही हुआ है। तो इसका रहस्य कुछ दिखाइए हमें। क्योंकि वो दुनिया की बेस्ट वेन्यू पर आ रहे हैं, वो दुनिया की बेस्ट लोकेशन पर आ रहे हैं, वो दुनिया की सबसे बेस्ट वेदर, बेस्ट एयर, बेस्ट वाटर, सब कुछ यहाँ बेस्ट था। आज पॉल्यूटेड है, वो आज की स्थिति है।
पर जिस भारत भूमि में हम सभी जन्मे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बेस्ट एटमॉस्फेयर वाला प्लेस है पूरी दुनिया का, जहाँ पर 6 ऋतुएं हैं, जहाँ पर मौसम इतना जबरदस्त है कि आदमी इतना सूक्ष्म सोच सकता है आध्यात्म और धर्म के बारे में, जो दुनिया का कई और देश नहीं सोच सकता। साल में 12 के 12 महीने हमारी बुद्धि एक्टिव रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है कि हमें हर वक्त आध्यात्म में गहराई में उतरने के लिए तैयार रखता है। आप ग्रीनलैंड चले जाओ, आइसलैंड चले जाओ, आप नॉर्वे, फिनलैंड चले जाओ, वहां पर आप साल में 12 महीने सोचने जितनी क्षमता में नहीं रहते। 8 महीने अंधेरे में रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो, ठंड में रहते हो, बुद्धि तो छोड़ो, शरीर काम नहीं करता। तब आदमी वहां पर शरीर को एक्टिव रखने के लिए अल्कोहल लेता है, नशा लेता है, शरीर को एक्टिव करता है, शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ता है कि वो जिंदा रह पाए। जहां पर जिंदा रहने की दौड़ है, वहां पर बुद्धि कहाँ अध्यात्म के विषय में सोचेगी। इसलिए भारत भूमि में ही ईश्वर ने क्यों जन्म लिया, क्योंकि इस भूमि पर ही उस समय में, उस कालखंड में इतने सूक्ष्म जगत पर चिंतन करने वाले लोगों का जन्म हुआ। भारत इसलिए आते हैं कि भारत में वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, भारत में वो वाइब्स है, वो वाइब्रेशन है, ऐसी रेडिएशन है यहाँ पर कि यहाँ आने के बाद में व्यक्तियों को और ज्यादा सहारा मिलता है आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का। धर्म, आध्यात्म और इन सारी चीजों को व्यक्ति यहाँ आंखों के सामने देखता है, जीता जागता स्वरूप है। हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा दिखती है। मैं अमेरिका आता हूँ, इंग्लैंड आता हूँ, बुरा मत मानना, मुरझाए हुए लोग दिखते हैं, उजड़े हुए लोग दिखते हैं, उखड़े हुए लोग दिखते हैं। ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि विटामिन की गोलियों से जिया नहीं जाता है। विटामिन जिन पौधों में से निकलता है, उन पौधों की सब्जी को ताजा खा करके जिया जाता है। आप लोगों को विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन मल्टीविटामिन की टैबलेट खानी पड़ती है, और जिन टैबलेट्स को जिन पौधों में से, जिन सब्जियों में से निचोड़ करके लैब में ले जा करके जहां से वो निकाला जाता है और टैबलेट बना के आपको दिया जाता है, मैं यहाँ पर किसी बाग बगीचे में जाकर के डायरेक्ट उसको तोड़ करके खा के ही सारे विटामिन ले लेता हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा इस देश में है। क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पर ऐसा मौसम बनाया कि 3 प्रकार की खेती होती है। सर्दी की फसल होती है, गर्मी की फसल होती है, बरसात की फसल होती है। हमारे यहाँ तो कई जगह तो 4-4 फसलें साल में ली जाती है, और अमेरिका में शिकागो वाले ले पाएंगे 4 फसलें, जहां पर साल में 8 महीने माइनस में टेम्परेचर रहता हो। इसलिए अमेरिका वाले भारत आकर के आध्यात्म की उस वाइब्रेशन को खींचना चाहते हैं, महसूस करते हैं। और न सिर्फ मैं आप गुजरातियों की बात नहीं करता, मेरे गुजराती भाई नहीं, मेरे भारतीय लोग ही नहीं, सारे गोरे यहाँ पर भरे पड़े। अभी मैं मेरे कथा स्थल के पास में मैं 400 साल पुरानी हवेली में ठहरा हुआ हूँ। इस वक्त मैं जिस कमरे में हूँ, ये कमरा 450 साल पुराना कमरा है। आज भी ये कमरा बहुत ही महंगे 5 स्टार होटल के रूप में यहाँ पर ये स्थापित है, और इसमें सारी वो सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, आज भी ये दीवारें, आज भी ये सारे कक्ष के अंदर देखो इतने मजबूती के साथ बने हैं। इस होटल के अंदर जहां पर मैं ठहरा हूँ, अभी इस वक्त मेरे साथ में 40 से ज्यादा अलग अलग कमरों में गोरे ठहरे हुए। क्या लेने आए वो यहाँ पर? उन्हें भी पता है आध्यात्म की ऊर्जा इसी मौसम में पैदा हो सकती है। वो उन मौसम में नहीं पैदा हो सकती जहां 8 महीने जिंदा रहने के लिए शराब पीना पड़े, तो फिर लकड़ी का सहारा लेना पड़े। नहीं, वो ठीक, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भगवान क्या है। तो अभी वो इतने सारे भगवान क्यों है, वो क्वेश्चन आता है उसमें कि हमारे देश में देखो। वो तो मैंने पहले ही कहा था, भारत में इतने सारे भगवान इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर हर स्वभाव के अनुरूप ईश्वर की परिकल्पना है। मैंने इसका एक सही लॉजिक भी दिया था, आज फिर से दे देता हूँ। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगेगी जिस गवर्नमेंट में एक ही डिपार्टमेंट हो, वो है प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफिस डिपार्टमेंट। कोई प्रकार का डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है। आपकी जो भी समस्या है वहां जाकर के आपको बतानी है। क्या उस देश के हर नागरिक तक उसकी दुख, दर्द, सुविधा, व्यवस्था सारी पहुंचाई जा सकती है एक ही ऑफिस से? नहीं पहुंचाई जा सकती। कौन सा प्रेसिडेंट बेटर होगा जिसके नीचे 10 डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट के नीचे फिर 100 डिपार्टमेंट, 100 डिपार्टमेंट के नीचे फिर 1000 डिपार्टमेंट होंगे?
जिससे गांव के अंदर बैठे हुए, अमेरिका के छोटे से छोटे गांव के अंदर बैठे हुए व्यक्ति तक भी डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होगा जो उनकी बात सुनेगा और वहां से कनेक्ट करके उसको, उस समस्या को प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। हमारे यहाँ पर ये इतने सारे ईश्वर, मतलब इतने सारे, मतलब माइक्रो लेवल पे एक डिपार्टमेंट है धर्म का, जहां पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप अपने ईश्वर से अपने आप को रिलेट कर सकता है। शीतला माता अर्थात शांति का प्रतीक, दुर्गा माँ मतलब 9 प्रकार के स्वरूप, जिसमें जब जैसी स्थिति हो वैसे स्वरूप का धारण कर देना। हाँ, हमारे भगवान गणेश जो रिद्धि सिद्धि के दाता है, शांत है, सरल है, शुभ है, मंगल है। भगवान शिव जब आवश्यकता पड़े तो रौद्र स्वरूप धारण कर लेते हैं, तो जो व्यक्ति उनसे रिलेट करता है वो उनसे जुड़ सकता है। भगवान कृष्ण जो 64 कलाओं में प्रवीण है, जो बियॉन्ड द लाइन और बिफोर द लाइन दोनों जगह खड़ा रहना जानते हैं, कब लाइन क्रॉस करनी है और कब लाइन क्रॉस नहीं करनी। इस स्वभाव में जो लोग पैदा हुए हैं वो भगवान कृष्ण से रिलेट करते हैं। हमेशा लाइन के इस पार खड़े रहना, जिसे कहते हैं मर्यादा के अंदर रहना, इस स्वभाव के साथ जो व्यक्ति पैदा होता है वो राम जी से रिलेट करता है। जो खरी खरी सुनाने वाला पैदा हुआ है वो कबीर से, हमारे कबीर साहब से रिलेट करता है कि मेरे तो भगवान कबीर होंगे। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा खरी सुनाने की आदत है। तो हमारे पास तो अलग अलग स्वभाव के अनुरूप अलग अलग महापुरुष, अलग अलग देव, अलग अलग देवता, अलग अलग देवियां, अलग अलग भगवान, कितने सारे डिपार्टमेंट हमारे पास है। किसी में क्षमता इतने डिपार्टमेंट संभालने की? अमेरिका को दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि आपके पास माइक्रो लेवल पे हर एक विलेज में आपके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई सिस्टम, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के स्कूल्स। आप लोग हाउस टैक्स देते हैं, उससे उसके बदले में आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन वहां पर वो प्रोवाइड करते हैं। अमेरिका में संख्या कम नहीं है, भारत के मुकाबले तो बहुत कम है, लेकिन 30-40 करोड़ भी बहुत होते हैं। 40 करोड़ लोगों को फ्री एजुकेशन देना ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात वो प्रजातंत्र, वो डेमोक्रेसी, वो प्रेसिडेंटशिप, वो आपका कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस, वो सब इतना अप्रिशिएटिव क्यों है? क्योंकि आपके पास माइक्रो लेवल पे डिपार्टमेंट्स हैं। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे धर्म में माइक्रो लेवल पे अकॉर्डिंग टू बिहेवियर वी हैव आवर ओन गॉड। हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप उसके पास अपना खुद का ईश्वर है। या तो छोड़ो, हर व्यक्ति के जो राम है ना वो भी अलग अलग है। हर इंसान के हनुमान जो भगवान है ना वो भी अलग है। किसी का हनुमान गदाधारी है, किसी का हनुमान लाल लंगोटधारी है, सबके अलग अलग भगवान है। किसी का कृष्ण बांसुरी वाला है, किसी का कृष्ण लड्डू गोपाल है पालने में सोता हुआ, किसी का कृष्ण हाथ में लड्डू लिया हुआ है, किसी का कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी है, किसी का कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाने वाला बंसीधर गिरधारी है, किसी का कृष्ण नरसी के साथ मायरा भरने वाला, किसी का कृष्ण मीरा का पति बना हुआ है। सबके अपने अपने कृष्ण है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति के स्वभाव और हर व्यक्ति के ईश्वर की परिकल्पना का सम्मान पूरी दुनिया में सनातन धर्म ने किया है। तो हम डेमोक्रेटिक हैं या दुनिया का कोई और व्यक्ति या और धर्म डेमोक्रेटिक है? हम डेमोक्रेटिक। हमसे ज्यादा डेमोक्रेसी इस दुनिया, हम पैदा ही डेमोक्रेसी के साथ हुए। इस बात को आप बहुत स्वाभिमान के साथ कहो, ये छोटी बात नहीं है। मत कहो कि यार हमारे तो भगवान ही फिक्स नहीं है। अरे भगवान फिक्स कैसे होंगे? हम सम्मान करते हैं हर इंसान के बिहेवियर का, हम सम्मान करते हैं हर इंसान की सोच का, हम सम्मान करते हैं हर इंसान की अपनी परिकल्पना का। कोई भी कैसा भी सोच सकता है। बुरा लिखना है तो बुरा लिखो, अच्छा लिखना है तो अच्छा लिखो, जो लिखना है लिखो। हर स्वभाव के अनुरूप हमारे पास में ईश्वर के स्वरूप हैं। रुद्र भगवान के बारे में सुना है, जिन्होंने कितने ही असुर पैदा कर दिए जन्म लेते ही। तो हमारे पास तो सुर भी हैं, असुर भी हैं। चाहे ईश्वर चाहते नहीं थे, ईश्वर नहीं पैदा करते, एक भी असुर पैदा नहीं करते इस दुनिया में,
लेकिन उनको पता है हर स्वभाव के अनुरूप मुझे जीव भी देने हैं और उन जीवों से जुड़ा हुआ ईश्वर भी देना। भगवान शिव राक्षसों के भगवान भी हैं, उनके सारे भगत राक्षस ही है, भूत प्रेत सारे भगवान शिव के ही चेले हैं। अर्थात आपने बुरे काम भी किए, आपकी वृत्ति में ही पैदाइश ही आप थोड़े से छलिया हैं, कुतर्की हैं, थोड़े से आप हैं, तो भी आप शिव की साधना करके अपने जीवन को साध कर इस स्वभाव से बाहर निकल सकते हैं। कितना शानदार ऑप्शन है आपके पास, और किसी धर्म में नहीं है। अन्य धर्म में अगर आप बुरे हैं ना तो सूली पे चढ़ा दिए जाओगे, जहर देकर के मार दिए जाओगे, 100 प्रकार की यातनाएं हैं। बहुत अच्छा। तो अभी वे तो पूरा क्वेश्चन दूसरा हो गया। अभी ये स्पिरिचुअल पे फिर से आते हैं कि स्पिरिचुअल में वो पूछते हैं कि अगर हमें वो स्पिरिचुअल बनना जरूरी है, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ स्पिरिचुअल, और व्हाई डू आई बी अ स्पिरिचुअल, वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं कभी। इस दुनिया में जरूरी कुछ नहीं है अगर आपने संकल्प नहीं लिया है। आपको कुछ करना है तो उसके लिए हर चीज जरूरी है। जो आप करने के लिए निकलोगे उसके रास्ते में जो चीज आपको मिलेगी वो सब चीजें जरूरी। अगर आपको खाना खाना है तो अपने बिस्तर से निकलना पड़ेगा, अपने कक्ष से बाहर भी आना पड़ेगा, और घर में अगर आपके ऊपर भारतीय माँ बाप नहीं है तो किचन में जाकर के खाना ब्रेड खुद टोस्टर में डाल करके पकाना पड़ेगा, उसके ऊपर बटर जैम लगा करके खुद टेबल पर आकर के बैठ करके खाना पड़ेगा। जरूरी जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, सब आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी नीड्स हैं। आप जब फुली सेटिस्फाई हो जाओगे अपनी डेली रूटीन करते करते, जब आप अपना काम करके, अपना पैसा कमा के, अपनी लाइफ के गोल को प्राप्त करके, अचीव करके सेटिस्फाई हो जाओगे, तब आपको नीडफुल रहेगा कि अब मुझे आगे क्या करना है। और उस समय जो नीड होगी ना, वो नीड यही होगी कि अब आगे यही करना है कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ कर लिया जो अचीव करना था। फाइनल गोल हर इंसान का यही होगा कि स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि इससे आगे कोई गोल नहीं है। यही बताएगा कि बैरियर कहाँ लगाना है, यही बताएगा कि डॉट कहाँ लगा करके सेंटेंस को पूरा करना है लाइफ के। तो अभी मुझे कैसे पता चले कि मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ कि नहीं हूँ? ऐसे नहीं, कोई वो पता आपको नहीं करना है, वो तो आपको शुरुआत करनी है। बस शुरुआत कर दो, बाकी आपके गुरु आपको बताएंगे कि आप कितने हुए। तो फिर शुरुआत कैसे करनी है वो बता दीजिए। शुरुआत करने का तो रास्ता मैंने बता ही दिया। पहले क्या मुझे सही है क्या गलत है इसकी पहचान करके धार्मिक होना है। तो फिर पहले आपने धार्मिक बताया, बनिए, फिर आध्यात्मिक बनिए। राइट, तो धार्मिक और आध्यात्मिक, आपने गुरु का वो थोड़ा संदेश दिया ना, तो अभी देखो गुरु कैसे बनाए हम। गुरु तो फिर तो आप कबीर साहब को पढ़ो उनसे बेहतर तो गुरु के बारे में और कौन ही बता सकता है। गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। कबीर साहब के शब्द सुना रहा हूं। बहुत गुरु है अस जग माई, हरे द्रव्य बहु दुख को नाई। बिन जाने जो कोई गुरु करही, सो नर भव सागर में परही। तो कहा गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जो आपके अंदर के भय को मुक्त करे, इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे कि हाँ मैं धार्मिक हो सकता। ये जो भय आपके अंदर था ना कि मैं कैसे होऊंगा, क्या मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं धर्म को जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, क्या मैं सिर्फ बातें ही करता रहूंगा कि इससे आगे भी बढ़ पाऊं, इस भय को दूर कौन करता है पता है? वो गुरु, जो डंडा लेकर पीछे खड़ा रहता है, तू चल मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, होगा सो देखा जाएगा। ये जो विश्वास देने वाला कोई होता है ना, वो गुरु होता है। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपके गले में कंठी पहनाए, कोई ठप्पा लगाए कि तू मेरा ही चेला है। आजकल ये इसकी बड़ी दौड़ है। गुरु बनते ही गुरु अपनी तस्वीरें देते, लगाओ अपने घर में मेरी बड़ी सी तस्वीर, उसकी पूजा होनी चाहिए, उसमें माला चढ़नी चाहिए, तभी तुम पक्के चेले हो ये दौड़ से बाहर निकलो। ये 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 दीवारों पर छपवाने से बाहर निकलो, अपने आप को पुजवाने से बाहर निकलो।
गुरु का मतलब वो विश्वास है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, बस, दैट्स इट। मेरा ये विश्वास अगर आपके पीछे, आपके अंतर्मन में जिंदा ना कि मेरे पीछे बापू खड़े हैं, बस मैं आपका गुरु हूँ, फिर मुझे आपको कोई ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके ना गले में कंठी पहनाने की जरूरत है, ना आपके रूम में आपके पीछे मेरी तस्वीर लगाने की जरूरत है। ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं, इनसे अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सत्य शाश्वत मूल बात पर आना पड़ेगा। और गुरु वही है जो भ्रम का निवारण करे, बस इस भ्रम को कि मुझे अब क्या करना, वो मैंने बता दिया। पहले पहचान करना शुरू करो सही गलत की, और सबसे पहले शुरुआत करो सत्य बोलने की। सत्य बोलना भी घर से शुरुआत करो। मैं अपने आप से और अपने परिवारजनों से कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं गंदा हूं तो मैं गंदा दिखाऊंगा अपने आप को कि मैं गंदा हूं, मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, मेरे अंदर 100 प्रकार के विकार हैं, मैं बहुत बुरा सोचता हूं। एक्सेप्ट कर लो एक बार अपने घर वालों के सबके सामने बैठ करके, देखो उस दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। आप स्वीकार करोगे, सामने वाला भी स्वीकार करेगा। स्वीकार करके धार्मिक होना शुरू करो। धार्मिक होगे तब स्पिरिचुअल होगे, एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। और इस जंग को लेकर के मैं निकला हूं, चिंता मत करो। मैं सपने दिखा करके आप लोगों को बीच में छोड़ने नहीं वाला। मैं बहुत जल्द अमेरिका आ भी रहा हूं, इस साल तो नहीं लेकिन अगले वर्ष आऊंगा। मैंने आपको कहा है मैं 3 से 4 महीने इस बार आप लोगों को देने वाला। 1 महीना कैलिफोर्निया, 1 महीना टेक्सास, फिर 1 महीना मैं दूंगा वॉशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, शिकागो, और 1 महीना दूंगा मैं सिएटल और एटलांटा और इन सारे जगह को। तो इसलिए मैं अगले साल बहुत लंबी यात्रा पर आप लोगों के बीच हूँ। तो अगले साल के हर दिन नए अनुभवों के साथ, नए कार्यक्रमों के साथ, और मैं चाहता हूं कि मेरे हर दिन के कार्यक्रम लाइव हो, आप सभी के फेसबुक चैनल पर लाइव हो। हर दिन आप मुझे सुने, रात को सोने से पहले, बिफोर बेड, सुनते रहिए, जानते रहिए, खोजते रहिए। पता नहीं इतने सारे लोग 100 सवाल पूछेंगे, कई सारे सवाल जो होंगे वो आपके अंतर मन के भी तो होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि ये सवाल मेरे मन में था और स्वामी जी ने के सामने पूछा और स्वामी जी ने उत्तर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, जितनी परतें खुलती जाएंगी उतनी साफ होती जाएंगी। साफ होंगी तो आप स्वच्छ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। फिर मुझे बड़ी आसानी रहेगी कि मैं एक साथ ही आपके अंदर जो तस्वीर मांडना चाहूंगा वो मैं पेंट कर दूंगा। और हमें भी आपका इंतजार रहेगा नेक्स्ट ईयर, कि नेक्स्ट ईयर जल्दी जल्दी आए, आप भी आए, और हमारा और प्रश्न, और फिर भी हम कबीर विजडम में तो आपको बुलाते ही रहेंगे। जैसे जैसे आपको जितना टाइम मिले, हमें आपका लाभ लेना ही चाहिए आपको। अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो कई लोगों ने पूछा था, और वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से उसमें उन्होंने पूछा था। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि पहले एक सब्जेक्ट दे देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन ये है कि स्पिरिचुअल से गेन क्या होता है, स्पिरिचुअल का बेनिफिट क्या होता है, स्पिरिचुअल से किसको लाभ मिलता है, कैसे लाभ मिलता है, वो वाला। तो मैं आपको सबसे मेन बेनिफिट स्पिरिचुअल का, सबसे मेन मूल बेनिफिट, आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव आपको महसूस ही नहीं होंगे। लाइफ डाउन जाए, अप जाए, मनी कम हुई, मनी ज्यादा हुई, गाड़ियां 2 हुई या गाड़ी 1 रही, बच्चे आपकी सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, पति आपका सम्मान करता है या नहीं करता है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कभी नहीं छोड़ेंगे, और दुनिया से एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएगी, और सदा आनंद, सदा उत्साह, सदा उल्लास में रहेंगे। ये स्पिरिचुअल होने का फायदा है। वही मैं पूछने वाला था कि हैप्पीनेस, इंडिविजुअली जैसे हैप्पीनेस, 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 हैप्पीनेस। राइट। तो ये मुझे क्या लाभ होगा वो आपने बता दिया। बता दिया। तो फिर अभी अभी ये सेम क्वेश्चन मेरी फैमिली को कैसे लाभ करेगा? आपकी फैमिली को क्या लाभ देना है? स्पिरिचुअल, अगर मैं स्पिरिचुअल हो गया तो मेरी फैमिली को क्या लाभ होगा? वो आपकी संगति में रहते हुए, आपकी स्थिति को समझते हुए, और मेरे जैसे साधु संतों के संपर्क में निरंतर आते आते परिवर्तन वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। कबीर चंदन संग से बेढ़े ढाक पलास,
आप सरीसा कर लिया जो ठहरा तिन पास। कबीर साहब के शब्द से सुना रहा हूं। चंदन जो है एक अकेला बड़े बड़े बांस के जंगलों में भी खड़ा हो जाए तो वो बांस के जंगलों को न सिर्फ चंदन में परिवर्तित कर देता है, खोखले बांस को भर करके पूरा निपट चंदन का वृक्ष खड़ा कर देता है। अकेला चंदन क्या नहीं करता। अगर आप एक स्पिरिचुअल हो जाओगे तो पूरे परिवार में आध्यात्म अपने आप प्रवाहित होने लगे, क्योंकि आपका जो इंसल्ट होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअल होंगे, आप आध्यात्मिक होंगे, तब आपको 100 चैलेंजेस शुरू में होंगे। कई लोग आपका मजाक बनाएंगे, कई लोग आपको ढोंगी कहेंगे, कई लोग आपको कहेंगे थोड़े साल पहले तो ऐसा था और अब ये ऐसा हो गया। वो करेंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि अब ये आदमी तो बिल्कुल बदल चुका है, इसकी लाइफ बदल चुकी है, इसके विचार, इसकी चाल ढाल, इसकी सोच, इसके विचार, इसके कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, सब कुछ चेंज हो चुके हैं। अब इस आदमी का कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उनके भाव परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे और वो भी आपसे प्रभावित होकर आपके मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। पर स्पिरिचुअल होने के बाद ये होगा, क्योंकि इतनी क्षमता स्पिरिचुअल आदमी में ही आएगी कि कोई आपकी आंखों के सामने आपकी बार बार इंसल्ट कर रहा होगा, कोई आपको नीचा दिखा रहा होगा, कोई पुरानी बातों को याद दिला करके बार बार आपको पोक कर रहा होगा। उस समय में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ आदमी ही हैप्पीनेस, खुश, काम, पीस, लव, कंपैशन, इन चीजों को दबा करके अपने अंदर स्प्रेड कर रहा होगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या कहे, वही आदमी आध्यात्मिक है। तो पूरा समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को इससे तो लाभ होगा ही होगा ना। बिल्कुल, वो आपके घर से आप ही के आध्यात्मिक होने से होगा। हो सकता है कि आपके द्वारा शुरू किया हुआ ये पौधा, ये बीज अंकुरित होकर के बड़े से विशाल वट वृक्ष का रूप ले। जितने जल्दी आप आध्यात्मिक होकर के इस बीज को रोपित करोगे, वो वृक्ष उतना ही समय लेगा वापस विशाल होने में। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया स्पिरिचुअल, रिलीजन, और हमारा टाइम भी, आपका भी बहुत टाइम हो रहा है वहां पे भी। तो अब आप जल्दी से सवाल ले लीजिए लोगों के। बस अभी वही करता हूँ कि अगर किसी के पास सवाल है तो जल्दी से पूछ लीजिए। आप जानते हो कि गुरु स्वामी जी वहां पे जहाँ पे है, अभी रात को 12 बज चुके हैं वहां पे। तो अगर क्वेश्चन कोई है तो आप हैंड रेज करिए, हमारी टीम, कबीर विजडम टीम आपको चांस देगी और आप बता सकेंगे उसमें। और राजू भाई है, और बीना बेन, सभी लोग देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन अगर किसी का हो तो। दया काका, आई कैन सी योर हैंड, पर आपका वीडियो नहीं है इसीलिए वो। ओके जी। राम कबीर साहेब, राम कबीर, राम कबीर, राम कबीर। साहेब बन गई। अरे वाह वाह, दया भाई, दया भाई। साहेब, पहली बात है, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यज्ञ समान, वाह वाह वाह। हाँ साहेब, मेरी बात एक है कि आपने जो हमने बताया कि कबीर साहब बीजक में कहते हैं, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सब कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। जी हाँ साहब, एक बात है ये बात कि भाई साहब कहते हैं कि सार शब्द का भजन करो, जंत्र मंत्र जपने से कुछ होने वाला नहीं है। कबीर साहब बीजक में कहते हैं साहब जी। और सुरती फंसी संसार में, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ी गयो दूर, सुरती बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। साहब और ये हाँ अभी, हाँ अब एक साखी और है, साखी तो बहुत है साहब, लेकिन ये अगर है, जो जन विरही नाम के, जो जन विरही नाम के, तिनकी गति कछु और। जो जन विरही नाम के,
तिनकी गति कछु और, देही से उद्यम करे, देही से उद्यम करे, सुमिरण करे विदेह, सुमिरण करे विदेह। साहेब, झूठी काया, झूठी माया, झूठे लोग लुगाई, झूठी काया, झूठी माया, झूठे लोग लुगाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, झूठे जगपति आई। साहेब, ये बहुत गहरी बात है। कई संत महापुरुष ने मुझे भली प्रकार से समझाया है, तो मैं सबके सामने ये बात और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। साहब, अगर मेरी गलती है, सवाल क्या है? मुझे सवाल चाहिए साहब। एक बात, अगर मेरी कोई गलती है तो पहले आपके पास मैं माफी मांगता हूँ। नहीं, गलती नहीं, मैं सवाल जानना चाह रहा हूँ। सवाल क्या है? इन चारों साखियों के पीछे इंटेंशन, सवाल क्या है? हाँ, सवाल क्या है? तो सुमिरन कैसे करे? सुमिरन जो है, पहले आपने हाँ, आपने ये कहा था मंत्र जाप वाला सब झूठ है। आगे? हाँ, मत भरमो सब कोई, सार शब्द जाने बिना, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो जब मैंने पहले नवरात्र में रात्रि जागरण में मंत्र जाप की बात करी थी, उसके पीछे का लक्ष्य बताया था। हाँ जी, सार शब्द जाने बिना, तो मैंने उसके पीछे का सार बताया था कि सार क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे का अगर लक्ष्य पता हो, उसके बाद हम मंत्र जाप चाहे करें, चाहे गुरु मंत्र का जाप करें, चाहे आंख बना करके बंद करके ध्यान करें, वो सब कुछ क्लियर है। सार आपको पता है, उसके बाद आपको साधने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना चाहिए। चाहे मंत्र हो, चाहे नाम हो, चाहे आदि नाम हो, चाहे गुरु मंत्र का नाम हो, चाहे किसी ईश्वर का नाम हो, चाहे अपने साधक का नाम हो, किसी न किसी नाम का सहारा लेकर के उस सार को हमें लक्ष्य को प्राप्त करना। सार शब्द जो है वो भी तो कहीं ना कहीं मूल है। आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पाताले, सप्त, सिंधु नाम, जो सार शब्द बताया जाता है मंत्र दीक्षा के दौरान हम सभी को, ये शब्द भी तो शब्द है ना, ये शब्द से बाहर तो नहीं है, शब्द विहीन तो नहीं है, इनको भी शब्द में पिरोया गया, इनसे भी ध्वनि निकल रही है। जब इन शब्द से ध्वनि निकल रही है, इन शब्द का हम सुमिरन कर रहे हैं, जिसे सार शब्द कह करके हमें दिया गया, तो फिर किसी भी मंत्र में भी सेम ध्वनि ही निकल रही है। किसी भी मंत्र में भी आप शब्द ही निकल रहा है, आवाज ही निकल रही है, ध्वनि ही निकल रही है। हमें मंत्र का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उस लक्ष्य को जानने के लिए उपयोग में लेना है कि हम जाप कर क्यों रहे हैं। तो मैंने जाप क्यों कर रहे हैं उसका रीजन बता दिया आपको पहले, कि हम जाप करते हैं जगने के लिए, अपनी ऊर्जाओं को संचित करने के लिए, जो आध्यात्मिक ऊर्जा और जो शारीरिक ऊर्जा, इन दोनों के बीच का सम्मिश्रण करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये नवरात्रि तक हमें ये उचित समय है कि दो वातावरण के बीच में जब प्रकृति अपना मोड़ ले रही है, उस दौरान जो जबरदस्त ऊर्जा इस प्रकृति के ऊपर हमारे अंदर प्रवाहित हो सकती है, उसको हमें संचित करना है, अपने अंदर समेटना है, ऊर्जावान बनना है। ऊर्जावान बनने के लिए हम लोग मंत्र जाप करने की बात कर रहे हैं। मंत्र जाप झूठ कह करके तो आप शब्द सारे ही झूठ है। अगर मंत्र झूठ है तो शब्द सारे ही झूठ है। साहेब कबीर ने कहने का अर्थ कुछ और था, हम अर्थ कुछ और नहीं। कबीर साहब के कहने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सार शब्द अर्थात हम अपने लक्ष्य को जान जाएं, उसके बाद नाम का सहारा चाहे किसी का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने लक्ष्य को जान करके। और रही बात आपकी उस बात की, तो उन्होंने सार शब्द की बात कही, तो वो ले जा करके आपको ध्यान पे ही अटकाएगा। अर्थात जिस ध्यान की आप बात कर रहे हैं कि ध्यान हमें कैसे करना है, फिर तो वो शब्द भी अजप्पा जाप की ओर बढ़ जाएगा, फिर उसे जपना भी ना पड़े और जाप भी हो जाए, वहां ले जाना है हमें उस मंत्र जाप को। तो नवरात्रि जो है, शुरुआत किसी मंत्र का सहारा लेकर के करें, और बाद में जब नवरात्रि के 9वें दिन तक आप अपने आप को साध देवें,
तब 9वें दिन आंख बंद कर बिना मंत्र का उच्चारण किए श्वासोश्वास में उस अजप्पा जाप को प्राप्त करके आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी बात को तो समझ गया प्रभु जी, लेकिन हमें सहारा तो लेना पड़ेगा। जो बात आप कर रहे हैं ये बात तो बड़ी गहरी है, लेकिन इस बात के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? मैं आपको कैसे उस स्थिति के लिए तैयार कर दूं जिस स्थिति के लिए आप तैयार ना हो? इसलिए मैंने कहा कि आप लोग किसी भी मंत्र, चाहे गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र हो, चाहे किसी महापुरुष के द्वारा दिया हुआ हो, चाहे आपको किसी देवी से मंत्र प्राप्त हुआ हो, जो भी मंत्र हो उसका सहारा एक बार ले लो। सहारा लेकर के जाप करो। जाप करके अपनी अपनी स्थिति को आसन सिद्ध करो। आसन सिद्ध करके अपने अंदर वो ऊर्जा को संचित करो जिसमें आप ज्यादा देर तक बैठ पाओगे। ज्यादा देर बैठ पाओगे तभी तो ध्यान कर पाओगे। कैसे करोगे आप ध्यान? हाँ, तो साहब कहते हैं साहब, नाम कहूं तो नाम न जाका, नाम कहूं तो नाम न जाका, नाम कहूं तो काल ते ही ताका, है अनाम अक्षर के माही, नहीं अक्षर को जानत नहीं। नाम की साहब कहते हैं कि नाम की जरूरत ही नहीं है, नाम का तो नाश होने वाला है साहब। नहीं, वो नाम समझ गए, तो नाम पर, न जाका। पर मेरी बात तो सुनिए। नाम का तो नाश होने ही वाला है, क्योंकि जब हम अजप्पा जाप की तरफ बढ़ेंगे तो शब्द वहां पर विहीन हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर तो श्वास में पिरो दिया जाएगा, और जब श्वास में पिरो दिया जाएगा तब नाम रहेगा ही कहाँ? पर उस स्थिति पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी तो पहली चढ़नी ही पड़ेगी ना। आज यहाँ पर इन्होंने नवरात्रि की साधना के बारे में मुझे बताया, तो ये पहली सीढ़ी मुझे नहीं चढ़ाऊंगा तो मैं कैसे आपको वहां तक पहुंचा पाऊंगा? सही बात है साहब आपकी। आप फाइनल स्टेप की बात कर रहे हैं। फाइनल स्टेप तब मिलेगा ना जब पहला स्टेप चढ़ेंगे। लेकिन साहब हम तो इसलिए नहीं, सुनिए, इसलिए कहते हैं जब तक गुरु के समक्ष बैठ करके किसी भी, चाहे बीजक हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामकथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे चारों वेद हो, गुरु की उपस्थिति में हमें उन सभी के मर्म को समझना होगा। आपने बीजक की इन 10 साखियों को सुना दिया मुझे, लेकिन ये 10 साखियों की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है और कौन सी साखी को किस लेवल पर उपयोग में लेना है, सबको क्रमबद्ध बनाना भी तो आना पड़ेगा ना। मुझे स्क्रीन पे इनका चेहरा दिखाइए। किसका? हाँ, आपका चेहरा, क्योंकि वो कुछ और बीच में दिखा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ दया भाई कि हमें आपने जो 10 साखी बोली, उस 10 साखी को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, कौन सी साखी का उपयोग हमें कहाँ करना है, वो हमें जब तक गुरु नहीं बताएंगे, हम चाहे 50 साखी रट ले, 50 साखियों का अर्थ भी जान ले, उससे होगा क्या? हमें स्टेप बाय स्टेप हर साखी को कहां पर कब उस अनुभव को हमें अपने जीवन में उतारना है, यह गुरु के साथ बैठ करके हमें साधना पड़ेगा। हाँ साहब। अभी हुआ क्या? हाँ, अभी हुआ क्या कि मैंने बोल दिया नवरात्र के बारे में, मंत्र के बारे में, जाप के बारे में, अनुष्ठान के बारे में। अभी तो मैं मेरे सामने बैठे हुए 2-5 हजार जितने भी भक्ता समाज के जो नए नए लोग हैं, युवा बच्चे से लेकर के 50-60 साल तक की उम्र के लोग मेरे सामने अभी मुझे सुन रहे हैं, वो सारे लोग डायरेक्टली टॉप ऑफ द इसके हमारे जो स्टेयर्स है उसमें टॉप ऑफ स्टेयर्स पे अभी कोई भी नहीं है। तो मैं कैसे उनको टॉप ऑफ स्टेयर की बात बताऊं? आपने जो बात कही, अब लोगों के मन में सच क्या होता है, और ये बापू ने तो कहा मंत्र जाप करना है, बैठना है, ध्यान करना है। दया भाई तो कह रहे हैं सब झूठ है। कबीर साहब कहते हैं साहब, कबीर साहब कहते हैं। नहीं, कबीर साहब ने वो जो बात कही वो दया भाई के लेवल के किसी व्यक्ति को कही होगी जिसने 2, 5, 4, 10 स्टेप क्लियर कर लिए। कबीर साहब ने वो बात चलते फिरते पहली क्लास के बच्चे को नहीं कही, उसने वो बात अपने प्रमुख शिष्यों से कही होगी जो दिन प्रतिदिन नित्य जाप करते हुए इस स्तर पे पहुंच गए। हाँ, तो मुझे अभी क्या करना होता है दया भाई कि ऐसे डिस्कशन आपको मुझसे पर्सनली करने हैं।
सही बात है साहब। नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई कबीर हाँ। साहब ने तो ये कहा। कबीर साहब ने ये तब कहा है जब आप उस लेवल पे आ जाओगे, उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि अब उस नाम को, उस मंत्र को, उस जाप को अब आपने श्वास में पिरोना है, इससे बाहर निकलना है। अभी तो इसके आगे भी बहुत कुछ है दया भाई, इसके आगे साहब बहुत आगे कुछ तो है। कुछ है, लेकिन सुमिरन की बात 1 मिनट साहब, सुमिरन की बात कि जो जन वीर ही नाम के, जैसे हेमंत भाई ने आपको सवाल किया कि व्हाट इज स्पिरिचुअल और वॉट एवर, आपने बहुत अच्छी बात की, कोई बात नहीं साहब। लेकिन जो साहब कहते हैं द लास्ट स्टेज ऑफ द नॉलेज, कि साहब कहते हैं कि जो जन वीर ही नाम के, जो जन वीर ही नाम के, तिनकी गति कछु और, देही से उद्यम करे, सुमिरन करे विदेह। बिल्कुल सही कहा साहब, ये मूल है, ये मूल है, अमर मूल की जी। साखी है साहब, अमर मूल की साखी जी है। है, जो जन बिल्कुल वीर है ही नाम के, जो जन जी वीर ही नाम के, तिनकी गति कछु और, देही से जी उद्यम करे, सुमिरन करे विदेह। जी। ये बीजक, ये मूल बीजक नाम प्रकाश और ये समझ गया, लेकिन अमर मूल। इसका भी उद्देश्य क्या कह रहा है आपको कि हाँ, सुमिरन ही आप सुमिरन करे विदेह, विदेह, है ना। यस। जब आप उद्यम करते हैं तो सुमिरन आपको क्या करता है, सुमिरन करे विदेह, देही से उद्यम करे, जो देही से हम उद्यम उद्यम करे, करते हैं और हमारी तब सूरत को विदेह में जाना है, देह में नहीं, विदेह में जाना है। हाँ देह में नहीं, विदेह में जाना है। तो बिल्कुल ये जाना साहब है, की साखी है साहब, अबाउट मे बी 50 साखी लाइक दैट। कभी साहब कहते हैं कि बहुत है, देह की 50 नहीं स्मरण बहुत करने से ज्यादा कुछ नहीं होने साखियां है वाला है साहब। जी। हाँ, वो नहीं, साखी वो है। कुछ नहीं होने वाला तब जब आप उस मर्म तक पहुंचेंगे, उसके बाद ले जाया जाएगा आपको वहां पे, पहले नहीं ले जा सकते हैं हम दया भाई। एकदम से पहले अगर हम ये बात करेंगे, आप तभी मैंने कहा ना, आप ये जो चर्चा है वो मुझसे निजी तौर पे करेंगे, तब हम ओके साहब। आपको वहां से फिर वहां की ओर ले जाएंगे जहां से आपको जाना है। हम पहले से ही उस स्तर की चर्चा करेंगे, तो हमने जीवन में कभी शुरुआत ही नहीं की, तो हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। साहब मैं अभी लोगों को साहब, उद्यम करके तैयार करना चाह रहा हूँ कि एक बार बैठना तो सीखो। हाँ सही बात है, सही बात है। मैं Thank you. उद्यम करके लोगों को तैयार करना चाह रहा हूँ कि एक बार बैठ करके अपनी स्थिति को बढ़ाना तो सीखो। हाँ, आप जो बात कर रहे हो डाया भाई, वो व्यक्ति 10-10, 12-12 घंटे एक आसन पर बैठ करके अपनी स्थिति को भुला करके वहां तक पहुंचता है। तो क्या आप में से कोई भी एक व्यक्ति है जो 12 घंटे एक आसन लगा करके मेरे सामने मुझे दिखाए वो विधेय होकर के? नहीं हो पाता है दया भाई। तब होगा ना जब हम उस स्थिति को साधेंगे। साहेब ने तो 50 नहीं 5,000 साखियां कही होंगी, सैकड़ों हाँ, साखियां हाँ, कही हाँ, होंगी, लेकिन बहुत कही हुआ है। क्या? हुआ क्या? हम उन साखियों को क्रमबद्ध बना नहीं सके। शुरुआत में साहेब ने कुछ और करने के लिए कहा है, फिर कुछ और करने के लिए कहा है, प्रेम के बारे में कहा है, सत्य के बारे में कहा है, चित्त के बारे में कहा है, आनंद के बारे में कहा है, साधु के बारे में, गुरु के बारे में। इतना क्यों कहा? साहब तो डायरेक्ट यही लाइन बोल देते जो साखी आपने कही। वो सब बातें साहब ने इसलिए करी कि वो व्यक्ति को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि स्टेप बाय स्टेप क्या हमने इन चीजों को फॉलो करते हुए ये विधेय होने की बात तक पहुंचे हैं कि डायरेक्ट विधेय होने की बात कर रहे हैं? इस पर हमें थोड़ा सा समझना होगा। ये जो है ये बहुत, आप पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, मैं पहली क्लास की बात कर रहा हूँ, सारे मेरे पहली क्लास के बच्चे हैं, उनको मैं पोस्ट ग्रेजुएट का ज्ञान लेके जा रहा हूँ, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन्हें पहली क्लास का ज्ञान दूं, फिर दूसरी क्लास का दूं, फिर तीसरी क्लास का दूं, फिर चौथी का दूं, फिर पांचवी का दूं, धीरे धीरे आगे बढ़े। एकदम से बम गोला गिरा दूंगा, विस्फोट हो जाएगा, वॉल्केनो फट जाएगा, सारा अंदर से मवाद निकल जाएगा। Thank you, very very good. Thank you Daya Kaka for giving good good. नहीं, सही बात की। मैं एक बात कर रहा हूँ दया भाई, जब आप
दया भाई की बात करने वाला था कि आप डिसाइड करते कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हूँ। माउंट एवरेस्ट की बात कर दी, लेकिन आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जो ताकत चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो भी कुछ भी करना पड़ेगा, वो अभय दास जी कर रहे हैं। क्योंकि सीधा तो हम जा नहीं सकते। यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो अभय दास जी कह रहे हैं। जैसे सिंपल है, सिंपल। यस, आगे से दया भाई आपके इस तरह के जितने भी साखियों के अर्थ जानने हैं, और अर्थ जान करके मुझे ये भी बताना है कि आप कहां तक पहुंचे हैं। उसके लिए आप मुझसे निजी वीडियो कॉल करें, पर्सनल वीडियो कॉल करें और मुझसे पूछें, मैं आपको एक एक चीज का जवाब दूंगा। अभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं थोड़ी देर पहले तो लोगों को मंत्र के लिए तैयार किया, और अभी दया भाई ने कहा उस बात को मैं सच कहूं झूठ कहूं, मैं फंस जाता हूँ। नहीं, ये क्योंकि मैं दया भाई ने जो कहा वो बात सच है, लेकिन पहली क्लास के बच्चों के लिए वो झूठ है। Thank you. Very good explanation. Thank you, Daya Kaka, for adding very good stuff. Okay, so Raju bhai, Ram Kabir, मैं तो इसलिए आया था कि दया भाई जो बात कर रहे थे उसमें माउंट एवरेस्ट की बात करी, ट्रेनिंग की जो बात दया भाई इज करेक्ट, दया भाई इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन दया भाई करेक्ट तब है जब दया भाई की एज क्या होगी, वो इस स्तर पे आ गए हैं कि वो पूरी जिंदगी चीजों को पढ़े हैं, अनुभव किए हैं, तब पहुंचे। और हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो 15 मिनट भी आसन लगा करके ध्यान नहीं कर सकते हैं। उनको मैं कहाँ विधेय होने की बात बताऊं, जिसमें 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, 10-10 दिन, 9-9 दिन, नवरात्रि तक कोई पानी पिए बिना, कुछ किए बिना ऐसे बैठ करके बिल्कुल कोमा जैसी स्थिति में चले जाते हैं, अनंतनाथ का श्रवण करते हैं और जपा जाप करके वो उस परम स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। मैं उन साखियों को मैं यहाँ पर कैसे एक्सप्लेन करूं जो 15 मिनट तक बैठना नहीं आता अभी जिनको। वेरी गुड, रियली गुड एक्सप्लेनेशन आपका। नहीं, तो सही बात कि जो फंडामेंटल है, जो हमारा जो हमारा भक्त परिवार अभी समुदाय आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। इसलिए अभय दास जी जो आप कह रहे हैं, आई एम कंप्लीटली विथ यू कि भाई जो अभी 10 मिनट में भी अपने श्वास पे नियंत्रण नहीं कर सकता, तो फिर ये जो ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, उसमें कैसे हम उसको ले जा सकते हैं। वहां तक जाने के लिए बहुत श्रम लगेगा। हाँ? और उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम आज उद्यम नहीं करेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। हम उस स्थिति में जाने के बाद कह सकते हैं उद्यम झूठा है, नाम झूठे हैं, शब्द झूठा है, मंत्र झूठा है। अभी मंत्र झूठा कहेंगे तो कोई करेगा ही नहीं। सही बात है। वो कबीर का अनुभव था, हमारा नहीं है, और हमारा अनुभव करने के लिए ये श्रम करना पड़ेगा। बस इतनी ही बात मैं कहने वाला था। नहीं, एक राजू भाई और एक आज बात चली तो ये बात सारे कबीर पंथ के जितने लोग हैं ये भी सुन लो। कबीर साहब कोई 1 साल के बच्चे नहीं थे, 125 साल तक जिए हैं। मैं भी 10 साल का कबीर कुछ और कहता था, 20 साल का कबीर ने कुछ और बात कही है, 30 साल के कबीर ने जैसे अनुभव किया अपनी चीजों को प्योरीफाई करके और बेहतर दिया है। और मैं भी जो दया भाई ने ये बात कही, ये कबीर साहब वो होंगे जो 110, 120, 125 साल की आयु में अनुभव करके लोगों को ये साखियां कह के गए होंगे। मैं बहुत फैक्ट की बात करता हूँ। कबीर साहब भी 125 साल की जर्नी जिए, कोई सामान्य जर्नी नहीं है वो। उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, तब जाकर के फिल्टर लास्ट जो अपना पूरे जिंदगी का ज्ञान है वो लास्ट में जाके सौंपा है। जब कबीर साहब को भी ये चीजों को करने में, अब वो अलग विषय है कि कबीर पंथ के कुछ महापुरुष, कुछ लोग श्रद्धा में ये कहते होंगे कि वो पैदा ही ब्रह्म ज्ञान के साथ हुए, और वो तो पैदा होने के बाद ही उन्होंने तो किसी को जिंदा कर दिया, किसी को मार दिया। ये श्रद्धा तक ठीक है, हम सबकी श्रद्धा तक। मैं भी कहता हूँ कि भगवान ने ये किया, कृष्ण ने किया, राम ने किया, बट टेक्निकल पॉइंट्स पे जब हम जाते हैं तो मूल में ये है कि सबकी जिंदगी के पूरे अनुभव होते हैं। उन पूरे अनुभवों को करने के लिए उन्हें पूरी लाइफ चाहिए होती है। कबीर साहब अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ आपको देके गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो फाइनल में कहा उसको आप फर्स्ट से शुरू करो। नहीं साहेब, बंगी साहेब, द फर्स्ट स्टेप हमको गुरुजी ने बताया था, ब्रह्म छुड़ाई पथ विकट को, निकट लखायो राम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। ब्रह्म छुड़ाई,
जब से साहब ने बात किया है तब से जैसे लाइक बॉम्ब, साहब ने बॉम्ब रख दिया मेरे पर, तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं साहब, सार शब्द के बिना, सार शब्द के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कोई भी बात करे तो बस सार नाम सतगुरु सो पावे, नाम विदेह कोई विरला। साहब अभी हमारे पास टाइम नहीं है साहब, थैंक यू। इसलिए कह रहा हूँ, आपके मन के सारे विकल्प और संकल्पों को दूर करने के लिए आप मुझसे निजी चर्चा करेंगे तो मेरे से डिस्कशन दूसरा पाएंगे। आज वाला डिस्कशन ये डिस्कशन नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। ना, थैंक यू वेरी मच। हम 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 40 साल के बच्चों से उनके छोटे छोटे सवालों का जवाब दे रहे हैं, और आप जो कहना चाह रहे हैं आप मुझे पर्सनली करेंगे तो मैं आप ही के लेवल से शुरू होऊंगा। वही बात है जो, तो फिर आपका के भी टाइम हो रहा है आज, इसीलिए थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। राजू भाई, ओके, सो बीना बेन तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन। There is also a question in the chat box. પછી લઈએ આપણે, પહેલા જરા બીના બેન નો ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ એકવાર जी। અને राम कबीर, मैंने आपको पहले भी बोला था अभयदास जी, अब भी बोलूंगी कि ये हमारा लक है, हम फॉर्चुनेट है कि हमारे जीवन में आप आए। बहुत ही फायदा हो रहा है। Come to the question, please. Okay, the question क्या है, मैं अभी समझ गई हूँ कि मुझे तो संसार में रह के हमारी फैमिली को की देखरेख वर्क सभी को लेके चलना है और कबीर जी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करना है। ये करना डेफिनेटली कठिन है। सारे जो हम अन्य लोग जो ये देख रहे हैं कबीर जी को फॉलो करते हैं, और या अन्य कोई भी गुरु भगवान जो भी वो देवी जिसको भी वो मानते हैं, जिसके लिए उनको श्रद्धा है, तो उनको फॉलो करने की श्रद्धा रखते हैं, लेकिन संसार में रह के फॉलो करने के लिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जिस तरह हमको सब समझा रहे हैं उसको करने के लिए ये मेरे लिए सरल हो रहा है। दोनों करने के लिए जो आप जैसे आपने बताया उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए और बैलेंस करने की भी क्षमता होनी चाहिए। वो आपकी मदद से, अदर स्पिरिचुअल सेशंस अटेंड करने की मदद से, कबीर विजडम की मदद से मुझे तो समझ में आ रही है, लेकिन अन्य लोगों के मन में भी ये सवाल है। कुछ ने तो मुझे डायरेक्टली पूछा है, तो उनके लिए सरल बनाने के लिए आप क्या दो पर्सनली उन्होंने क्या पूछा आपसे? नहीं, उनका कंफ्यूजन क्या है कि पहले तो मेरे को जज किया कि अब ये बदल गई, ये भक्ति भाव में लग गई, उसके साथ हैंग आउट करने के लिए अब फन नहीं होगा। लेकिन वो नहीं जानते कि मैं अभी भी नृत्य कर सकती हूँ, मैं अभी भी गाने सुन सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी लिमिट बनाई है कि मीट नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उनके साथ मैं एंजॉय तो करती हूँ लेकिन अपनी लिमिट में, राइट। तो जब मैं उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ कि आप डरिए मत, आध्यात्मिक बनने से, धार्मिक बनने से आपको आपका करंट जीवन गिव अप नहीं करना है। अगर आप पसंद करते हो कि आप मीट खाए या दारू पिए, जो कुछ भी हो, तो that's your choice, that's your personal choice, but to जैसे to live life with, जैसे आपने कहा, सत्य, प्रेम, right, क्या गलत है क्या सही है, like that understanding, once you have it you can have both। तो वो फिर भी अगला स्टेप लेने, जैसे आपने कहा हमको सीढ़ी चढ़नी है ऊपर तक जाने के लिए, पहला स्टेप होगा समझना, श्रद्धा रखनी है उसमें कि यही मुझे समझना है लक्ष्य को। सो वो पहले स्टेप लेने से ही घबराते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं? हाँ, तो
मुझे भी, और अगर आप 2 शब्द उनके बारे में कहिए कि घबराना हाँ नहीं हाँ, है। नहीं देखो, ऐसा है ना, उनके मन में एक हमेशा एक फीलिंग अपने उनके अंदर में चल रही होती है। वो फीलिंग ये है कि वो जो कर रहे हैं वो उनकी सोच में कहीं भी उन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया, और खाने पीने की किसी चीज को लेकर के धर्म कहीं खतरे में नहीं आता, ये उनकी सोच है। और मैं भी आपको बताऊं, जिन्हें ये नहीं पता है ना कि इससे ये नहीं हो रहा या उससे वो नहीं हो रहा, या खाने पीने से धर्म कहीं खतरे में नहीं आता, और वो स्टिल किए जा रहे हैं, उनके लिए ये अधर्म है भी नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं। पता जब आप उन्हें बताओगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों हम नहीं खाएं मीट, क्यों हम नहीं पिए अल्कोहल, क्यों हम ये सारी चीजें ना करें, इसके पीछे का साइंस जो मैंने पहले कितने सारे सेशन में आप लोगों को बताया था कि मीट न खाने के पीछे, नॉन वेजिटेरियन न खाने के पीछे रीजन क्या है, क्यों हम छोड़ रहे हैं, क्यों हम मना कर रहे हैं, कि आप नॉन वेजिटेरियन खाओगे तो आप कहीं ना कहीं नेचर सर्किल को डैमेज करोगे। प्रॉपर साइंस है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा, ये हमारा साइंस कह रहा है, विज्ञान कह रहा है, और हमारे सारे दुनिया के बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग कह रहे हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई बात चल रही है तो वो क्या चल रही है कि वीगन सोसाइटी डेवलप हो, न सिर्फ अमेरिका में, न सिर्फ लंदन में, न सिर्फ यूरोप में, होल एंटायर द वर्ल्ड अभी एक क्या हो रही है, वीगन सोसाइटी डेवलप हो रही है। और वो जो वीगन सोसाइटी वो डेवलप किस सोच के ऊपर हो रही है कि वो अगर इसी तरह से खाते रहे नॉन वेजिटेरियन चीजों को तो वो नेचर सर्किल को बर्बाद कर रहे हैं, और नेचर सर्किल बर्बाद होने से इंसानियत भी खतरे में आ जाएगी। एक दिन मनुष्य जो इस दुनिया में जी रहा है, मनुष्य ही इस दुनिया को बर्बाद करने का मनुष्य सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। ठीक है, तो हम अगर नॉन वेजिटेरियन छोड़ रहे हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, न स्वामी जी पे कर रहे हैं, न आप पे कर रहे हैं, न कबीर साहब पे कर रहे हैं, न कृष्ण पे कर रहे हैं, न राम पे कर रहे हैं, न शिव पे कर रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी मनुष्य जाति को जिंदा रखने में अपना ही योगदान, पहला योगदान ये दे रहे हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे। अब जिसे इसके बारे में पता नहीं है ना, उनके लिए कोई गिल्ट नहीं है, उस समय में उनका धर्म खतरे में नहीं है। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाए ये बात, उसके बावजूद तुम ये सब काम करते हो, मतलब तुम अधार्मिक हो, फिर तुम धर्म में नहीं हो। इफ यू नो दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, देन स्टिल यू चूज रॉन्ग वे, दैट इज अधर्मा। जब तक नहीं जानते हो तब तक कोई दोष नहीं है, जिस दिन जान जाते हो उसके बाद भी करते हो, देन यू आर ऑन द वे, यू आर ऑन वे ऑफ अधर्मा। तो फिर आपको अधर्म से धर्म पर कैसे आना है, उसके लिए बार बार हमें प्रयास करने हैं कि ऐसा सर्कमस्टेंसेस में, उनके सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशन बार बार बने जिसमें उन्हें बार बार महसूस हो कि वो गलत रास्ते पे हैं। वो सिचुएशन हमें बनाना सीखना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ के लोग बदलें, तो वैसी चीजें, वैसी सिचुएशन, वैसे सेशन, इस तरह के प्रोग्राम्स, मेरे जैसे साधु संतों के बीच में संपर्क में आना, हमारे सेशंस को सुनना, यही एक सिंपल तरीका है जिसमें हम उन लोगों को, हम किसी को डंडा पकड़ के रोक नहीं सकते। अमेरिका जैसे देश में तो किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि हम उसके आसपास की सिचुएशन ऐसी बनाए जिसमें उसके कानों में और उसकी आंखों के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि वो छोड़ दे। और रही बात अल्कोहल की, तो उसके लिए तो मेरा सिंपल सा, हमें लोगों को एक सिंपल सा एक मेरा रिक्वेस्ट रहता है, अल्कोहल वो पीते हैं जो अपने बुरे अनुभवों को दबाना चाहते हैं या भुलाना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्कोहल वही पीते हैं जो अपने बैड एक्सपीरियंसेस को भुलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अल्कोहल ना पिए, क्योंकि आप अच्छे अनुभव करें, बुरे अनुभव करें ही ना, इकट्ठे ही ना करें, ऐसे एक्सपीरियंस करें ही ना जिसको सोच के बाद में आपको गिल्ट हो, रोना पड़े, एकांत में जाना पड़े और उसको भुलाने के लिए फिर 2-4 बोतल पीनी पड़े। वही है जी, ठीक है जी। तो आपका वो आप टाइम बहुत हो गया, बीना बेन, थैंक यू। जी, आप अगर दूसरी बात थैंक यू राम कबीर। सो
हमने बहुत समय ले लिया आपका, थैंक यू अगेन। एक और चीज मैं सभी को बता दूं, બધાને હું પાછો એકવાર કહું છું કે બીજા સેશનની અંદર હવે કે જ્યારે પાછો આપણને અભયદાસજી જોડે સમય મળશે અને આપણે પાછો બીજું સેશન કરીશું, તો અત્યાર સુધી આપણે લીધા હતા યંગ જે હતા એ લોકોના ક્વેશ્ચન લીધા હતા. હવે આપણે ક્વેશ્ચન લઈશું બહેનોના. બહેનો, માતાઓ, એ લોકોની પાસે જે કંઈ ક્વેશ્ચન હોય અભયદાસજી માટે, તો પ્લીઝ બીનાબેનને મોકલો કે અમારી કબીર વિઝડમ ટીમને મને પણ મોકલી શકો છો અને અમને મોકલો. ક્યાં પછી તમે તે દિવસે એ સેશનમાં ઝૂમ પર આવીને તમે પણ પ્રશ્ન પૂછો એવું આપ બધાને વિનંતી છે. અને બહેનોના જ પ્રશ્નો તે દિવસે રહેવામાં આવશે અને અભયદાસજી એનો આન્સર આપશે. અભયદાસજી આપણા માટે ઓલવેઝ રેડી છે. અગેન થેન્ક યુ અભયદાસજી, તમારો આટલો કિંમતી સમય, કિંમતી ઊંઘ અને તમે અમને એકદમ સચોટ નિષ્ણાંત રીતે તમે જવાબ આપવા બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર. थैंक यू राम कबीर। शुभ रात्रि सभी को। आप सभी को, आपका तो गुड मॉर्निंग है, मेरा शुभ रात्रि है। तो मैं मिलूंगा अगली बार, हम फिर किसी अच्छे डिस्कशन के साथ फिर शामिल होंगे। और मेरा खुल करके सबको आमंत्रण है, कभी भी आपके कोई भी निजी अनुभव के सवाल हो वो आप मुझे डायरेक्टली करें। और बेशक डाया भाई को मेरे नंबर दीजिए, और भी कोई ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपने स्तर से जानना है ज्ञान को, धर्म को, अध्यात्म को। ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म है, तो इसमें हम निजी सवाल को हम निजी तौर पे पूछें। तो मैं चाहता हूँ कि डाया भाई जैसे सवाल है वो मुझ तक डायरेक्ट आए, वहां पर मैं उन्हीं के स्तर से जवाब दे पाऊँ। और हमारे जो ये सवाल है इस पर हम जनरल सवाल पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करने हैं, उस स्तर तक चीजों को बाद में ले जाया जाएगा। मैं खुद जवाब दूंगा, जनरल लेवल पे जवाब दूंगा, पर 1-2 साल का समय दो जब तक मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं हर व्यक्ति के माइंड के। थैंक यू। आप पूर्ण जो अंतिम प्रार्थना है वो आप कर दे हमारे लिए। बिल्कुल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।